In today's class, after completing chapter 1, we are going to start with our next chapter, which is chapter 2. The name of the chapter is relation and function. This chapter is not just important from 11 point of view, but also from 12 point of view. अगर मैं इस चैप्टर को कंसेप्चुअली डिवाइड करता हूँ तो दिस चैप्टर विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज कार्टेशियन प्रोडक्ट. Second concept is relation, and then third concept is function. To understand the concept of relation and then function, it is important to understand the concept of Cartesian product. और जो आपकी एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है वो भी इसी तरह से आपकी डिजाइन है. जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 2.1 दैट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. Exercise 2.2 based on the concept of relation. Exercise 2.3 based on the concept of function, and then miscellaneous, which is a mix of all these concepts. So first of all, let us understand how to work with Cartesian product, or what is the concept of Cartesian product. So our first concept is working with Cartesian product. Once we complete this concept, then we will move to relation and then we will move to function. अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ. देयर इज अ सेट ए हैविंग एलिमेंट्स 1 2. देयर इज अनदर सेट हैविंग एलिमेंट ए बी. कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? दो सेट को का प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट मींस व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ टू सेट. ये नॉर्मली जो मैथमेटिकली हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये उस तरह से नहीं होते कि 2 into 3 आपने कहा 6. नहीं, जब हम सेट्स का मल्टीप्लाई करते हैं, सेट्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, उसको किस तरह से फाइंड किया जाता है वो आप समझो. सेट ए, तो सेट ए को आपने लिखा 1 2. तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट का करते हैं तो इस एक्स को हम पढ़ते हैं क्रॉस. व्हाट वी हैव टू फाइंड? ए क्रॉस बी. You can see that this is the set A and this is set B. तो जब हम सेट A का सेट B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो आपका आंसर होता है उसी को हम वो आप बेसिकली व्हाट यू आर फाइंडिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट. व्हाट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट सेट्स. और प्रोडक्ट ऑफ टू सेम सेट्स भी आप कह सकते हो. लाइक सेट A को आप सेट A के साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हो. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट यू विल सी product of two different sets. Product of set A with set B. So set A is 1 2 and value of set B is AB. Now how to find the Cartesian product? 1 pairing with A. What we will have? 1A. Then 1 into B, that is 1B. Then 2 into A, that is 2A. Then 2 into B, that is 2B. This is how to find the or how to compute the Cartesian product of two different sets. पहले आपने फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट को लिया और सेट बी के जितने भी एलिमेंट है सबके साथ उसकी पेयरिंग की. लाइक 1 into A 1A, 1 into B 1B. Then second element of set A and pairing it with element of each and every element of set B in order 2A and then 2B. और एक चीज का आपको ध्यान रखना है, सेट ए के एलिमेंट जब आप पेयरिंग करोगे तो सेट ए के एलिमेंट्स को आपने पहले लिखना है और सेट बी का एलिमेंट्स बाद में. फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ फाइंड करना हो बी इंटू ए मीन्स बी सेट के जो एलिमेंट्स है वो आप पहले बी सेट को आप पहले लिखोगे दैट इज ए बी इंटू सेट ए दैट इज 1 comma 2. इन दैट केस जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा बी क्रॉस ए that will be equal to A1, A1, A2, A2, B1, B1, and then B2, B2. This is Cartesian. और ये जो आपके पेयरिंग है
1A 1B 2A 2B और A1 A2 B1 B2, इसको हम ordered pair कहते हैं. These are called as ordered pair. And we know that, like if I say coordinate 2 3 or coordinate 3 2, can I say they are equal? No. Their graphical presentation is different. 2 3 is never be equal to 3 2. But if in question it has been given that AB ordered pair is equal to 1 2 ordered pair, it means by law of equality A is equal to 1 and B is equal to 2. A is equal to 1 and B is equal to 2. You can see that AB is never equal to BA. Like 1 2 is not equal to 2 1. 1 2 is not equal to 2 1. But if it has been given in the question that AB ordered pair is equal to, say, ordered pair XY, it means A element is equal to X element and B element is equal to Y element. First one is equal to first element and second element is equal to second. Element of first ordered pair is equal to first element of second ordered pair. And second element of first ordered pair is equal to second element of second order. Is it clear? अभी तक जितना हमने कंसेप्ट समझा है उस पर बेस्ड हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज if x by 3 plus 1, if x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal to y 5 by 3 comma 1 by 3, find the value of x and y. As I told you, if it has been given in the question that the ordered pairs are equal, it means first element of ordered pair will be equal to the first element of ordered pair. Second element of ordered pair will be equal to the second element of another ordered pair. You can see that x by 3 plus 1 will be equal to 5 by 3 and y minus 2 by 3 will be equal to 1 by 3. And in this way we can find the value of x and y. How? See. As it has been given that this ordered pair is equal to this one, it means x by 3 plus 1 is equal to 5 by 3 and y minus 2 by 3 is equal to 1 by 3. Now when x by 3 plus 1 is equal to 5 by 3, what we will get? X, our LCM will be 3, then x plus 3 ones are 3 equal to 5 by 3. 3 and 3 will be cancelled out, x plus 3 equal to 5. You can say that x will be equal to 2. X will be equal to, similarly, y minus 2 by 3 is equal to 1 by 3. And y will be equal to what? 2 by 3 plus 1 by 3. LCM will be 3, 2 plus 1. 2 plus 1, that is 3 by 3. So y will be equal to 1. So by equating the ordered pair, our answer will be x equal to 2 and y equal to. मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, जो आपका एनसीईआरटी का ऑर्डर रहता है उसके साथ आपको नहीं करवाऊंगा, पर क्वेश्चन में आपको सारे करवाऊंगा. ऐसा नहीं है कि 2.1 का मैं कोई क्वेश्चन स्किप करूंगा, मैं एक एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, पर मैं अपने हिसाब से करवाऊंगा. ओके, तो फर्स्ट के बाद जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आप करवा रहा हूँ थर्ड. द थर्ड क्वेश्चन इज if set G have element 7, 8 and set H have element 5, 4, 2, then find G cross H and H cross G. अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका जो कंसेप्ट है वो डायरेक्टली जो है आपका वो किस पर बेस्ड है? क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है. दैट इज वाई क्वेश्चन नंबर 1 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवा. ओके, क्वेश्चन पर मैं सारे करूँ. 1 हम कर चुके हैं, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड G क्रॉस H. मैंने क्या कहा, जब दो डिफरेंट सेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको कैसे रीड किया जाता है? G क्रॉस H. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ G क्रॉस H and then we have to find the value of H cross G. Okay. G cross H, that is set G 7, 8
क्रॉस सेट H 5 4 2। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है? जी सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट है इसकी पेयरिंग हम सेट H के सभी एलिमेंट्स के साथ करेंगे, लाइक 7 5 7 4 7 2। Then second element of G set will be paired up with each and every element of set H, like 8 5 8 4 8 2. This is G cross H. Now we will find the value of H cross G. H cross G. Set H 5 4 2. Set G 7 8. 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 and 2 8. From here you can see that G cross H 7 5, H cross G 5 7, G cross H 7 4, H cross G 4 7. It means G cross H is not equal to H cross G. तो जब हम ऑर्डर्ड पेयर करते हैं A और B का, A और B का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो B और A के ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल नहीं होता है, बिकॉज जो एलिमेंट्स होते हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, X और Y की जो पोजीशन है वो अपोजिट हो जाए. Like I say, 1 2 is not equal to 2 1. That is why जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दो डिफरेंट सेट का, उसका जो अपोजिट ऑर्डर होता है वो इक्वल नहीं होता. ओके, फ्रॉम दिस क्वेश्चन आपकी प्रॉपर्टी भी वेरीफाई होती है दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G क्रॉस H is equal to number of elements in H cross G is equal to number of element in set G into number of element in set H. How you can see that? See, number of elements in H cross G 1 2 3 4 5 6, that is 6. Then number of element in G cross H 1 2 3 4 5 6, that is again 6. And number of element in set G, that is 2, and number of element in set H, that is 3. You can see that number of element in number of element, n means number of element. Number of element in G cross H, that is 6. Or number of element in H cross G, that is 6. Element means ordered pair. Element means ordered pair, which is equal to number of element in set G into number of element in set H, that is 2 into 3. Again it will be equal to 6. So this is the one of the property which we have verified from this question. Okay, now let's move to the next question, which is question number 2. Question number 2 is, if the set A has 3 elements, how many elements in set A? That is 3. And set B equal to 3 4 5. Then find the number of element in A cross B. अभी जो प्रॉपर्टी हमने क्वेश्चन नंबर 3 से वेरीफाई की है ये उसी पर बेस्ड है. दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि मेरा जो ऑर्डर होगा वो आपका एनसीईआरटी से डिफरेंट होगा, बट यू कैन सी दैट क्वेश्चंस आर नॉट इंटररिलेटेड टू ईच अदर. इस सीक्वेंस में हम कर रहे हैं 1 के बाद 3, तो 1 के बाद जो 3 क्वेश्चन था वो 1 पर बेस्ड था, 1 से रिलेटेड था, और अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो 3 से रिलेटेड. सेट ए में कितने एलिमेंट है? 3. सेट बी में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप देखो 1 2 3, तो ये भी कितने हैं? 3. अभी हमने प्रॉपर्टी स्टडी की थी, ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे? जो सेट ए में एलिमेंट है और सेट बी के जो एलिमेंट है उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो उसके इक्वल होंगे. तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे? 9. मींस ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे? 9 बनेंगे. अब आपकी प्रेजेंटेशन किस तरह से होगी? हाउ विल यू रिप्रेजेंट द आंसर? Number of element in set A 3. According to the question, set B has element 3 4 5. And we know that number of element in A cross B is equal to number of element in set A into number of element in set B.
that is 3 cross 3 which is equal to 9. Now our next concept is finding set using Cartesian product. Our next concept is finding set using Cartesian product. Finding set using Cartesian product. भाई अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, वेयर वी फाइंड जी क्रॉस एच, जो हमारा जी क्रॉस एच आया था वो कुछ इस तरह से आया था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ. दिस इज अवर जी क्रॉस एच 757472 858482 858482. So from solution of question 3, we have seen that G cross H is equal to 757472 and 858482. अब अगर इस क्वेश्चन को, अगर आपको यही क्वेश्चन गिवन हो, say this is the question, and if I ask you out of these tell me set G element and out of these tell me set H elements, कि सेट G के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और सेट H के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो आपको पता है. तो बहुत सिंपल होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है आपके वो फर्स्ट वाले सेट के होते हैं. रिपीटेड एलिमेंट को आप एक ही बार लिखोगे 7 7 7, तो एक तो हो गया 7 और फर्स्ट एलिमेंट आपको कौन सा दिखाई दे रहा है 8. तो जो फर्स्ट सेट है आपका उसके एलिमेंट है 7,8. जो सेकंड सेट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, जो सेकंड वाले आपके ऑर्डर पेयर में एलिमेंट है दैट इज 5 4 2. 5 ऑलरेडी आप लिख चुके हो, 4 भी लिख चुके हो, 2 भी. तो अगर आपको ऑर्डर पेयर, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट दिया हो दो डिफरेंट सेट का और उस ऑर्डर पेयर को देख के उस क्रॉस प्रोडक्ट से आपको सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स बताने हो, तो कैसे बताओगे? जो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे आपके पहले वाले सेट के एलिमेंट है और जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो आपके सेकंड वाले सेट के एलिमेंट होंगे. ओके, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं विच इज योर क्वेश्चन नंबर 6. तो हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया. Now we are going to do question number 6. Question number 6 is if A cross B is equal to AX, AY, BX, BY, find A and B. बहुत सिंपल है, मैंने क्या कहा, अब A जो है आपका वो लेफ्ट वाला सेट है, फर्स्ट सेट है. तो जो भी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट A के है, लाइक A एंड B. तो जो सेट A है वो क्या होगा, स्मॉल a कॉमा स्मॉल b एंड देन सेकंड सेट विच इज सेट b. अब जो सेकंड वाले एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर में वो सेट b के एलिमेंट्स है x एंड y. तो जो सेट b होगा उसके एलिमेंट क्या होंगे, x कॉमा 1. हाउ विल यू रिप्रेजेंट द आंसर? as A cross B is equal to AX, AY, BX, BY. So set A will be equal to A and B and set B is equal to X and Y. This is question number 6. Question number 6 के बाद अब हम डायरेक्टली करेंगे question number 9. Question number 9 is let A and B be two sets such that number of elements in set A equal to 3, number of elements in set B equal to 2. Then if x1, y2, z1 are in A cross B, A cross B के कुछ ऑर्डर पेयर्स गिवन है, फाइंड A and B where x, y and z are distinct एलिमेंट. तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका डायरेक्टली जो अब इंटर रिलेटेड है, ये क्वेश्चन नंबर 6 से है. तो मैं आपको यही बता रहा था कि क्वेश्चन का जो सीक्वेंस मैं ले रहा हूँ वो इस तरह से ले रहा हूँ कि एक क्वेश्चन जो है दूसरे क्वेश्चन से कनेक्टेड है. मैंने आपको अभी बताया कि जो सेट ए होगा आपने फाइंड किया ए क्रॉस बी के ऑर्डर पेयर. तो सेट ए के जो एलिमेंट होंगे, जो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट है वो होंगे दैट इज एक्स, वाई एंड जेड. एक्स, वाई एंड जेड एंड देन सेट बी जो होगा इसके एलिमेंट्स क्या होंगे 1 and 2, 1 2.
1 रिपीट हो रहा है, ये आप ऑलरेडी लिख चुके। फाइंड ए एंड बी, आपने ए को फाइंड कर दिया, बी को फाइंड कर दिया, वेयर एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, तो हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, यू कैन सी दैट first of all number of element in set A that is 3, number of element in set B equal to 2, A क्रॉस B x1 y2 z1 ये आपको गिवन है। तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 1 x y z। सेट बी में जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, सेकंड वाले 1 एंड 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो हम करेंगे वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज if set A is equal to -1, 1 find A क्रॉस A। जब मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो आपका कंसेप्ट है ये आपको करवाया था, तो मैंने आपको ये भी कहा था कि जरूरी है कि डिफरेंट सेट लाइक A क्रॉस B हम फाइंड करते हैं, हम सेम सेट का भी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। यू कैन सी दैट A क्रॉस A। ओके, कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सेट A हैज बीन गिवन -1, 1। First of all, we need to find A cross A. A cross A means -1, 1 cross -1, 1. This is set A and this is set A. What will be the answer? -1 into -1, -1, -1. Then -1 into 1, -1, 1. Then 1 into -1, 1 -1. And then 1 into 1, that is 1. A क्रॉस A से जो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें ये 4 ऑर्डर पेयर्स आपके हैं। Now what we need to find? We need to find A क्रॉस A। A क्रॉस A की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, तो आपने इसको लिखा, दिस इज A क्रॉस A। A क्रॉस A क्रॉस A क्रॉस A। Now see, first of all -1 -1 with -1, that is -1 -1 -1. And then -1 -1 with 1, that is -1 -1 and then 1. Okay, then -1 1 with -1, that is -1 1 -1. And then -1 1 with 1, that is -1 1 1. Then 1 -1 with -1, that is 1 -1 with -1. 1 -1 with 1, 1 -1 with 1. Then 1 1 with -1, 1 1 with -1, and then 1 1 with 1, 1 1 with 1. This is our final answer, and you can see that number of element in -1 1, that is 2. Basically 2 A cross A cross A. Number of elements in set A, that is 2, 2 and 2. तो जो टोटल आपके ऑर्डर पेयर्स बनेंगे इनके क्रॉस प्रोडक्ट से वो कितने होने चाहिए, वो 8 होना चाहिए। यू कैन सी दैट 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Number of element in A cross A cross A is equal to number of element in set A into number of element in set A into number of element in set A, that is equal to 2 into 2 into 2. Okay. Now next question is question number 10. Question number 10 is the Cartesian product A cross A has 9 elements. According to the question, A cross A का जो Cartesian product है इसमें कितने element है, 9. So can I say that set A has 3 elements? That is why 3 cross 3 becomes 9. Among which are, sorry, concept कर दी, not among which are found -1 0 and 0 1. Out of these 9 elements, ऑर्डर पेयर को जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो ऑर्डर पेयर को ही एलिमेंट कहा जाता है।
So out of these 9 elements, 2 elements have been given, -1 0 and 0 1. Find the set A. अब set A में जो 3 elements है आपको वो find करना है, and the remaining element of A cross A. अब 2 element जो आपको एक given है, इसके अलावा बाकी के जो 7 elements है वो भी आपको find करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट A, ये तो बहुत सिंपल है, -1 0 and 1. You can see that these are the 3 different elements. How to represent the answer of this question? First of all, according to the question, number of element in A cross A is equal to 9. Out of these 9 elements, 2 elements have been given. Now from these 2 elements, we can find the number of, we can find the value of set A. That is -1, 0 and 1. Now we need to find A cross A. We need to find A cross A. What it will be? -1, -1, -1 0 and -1 1. Then 0 -1, 0 0 and 0 1. Then 1 -1, 1 0 and 1 1. This is your answer. Now out of these 9 elements, -1 0 and 0 1 already given in the question, and these are the remaining elements which we have to find and which we have found. Okay. Now till now, what we have understood from this exercise, our first concept is Cartesian product. First concept which we understood, that is A cross B is not equal to B cross A. Then second concept which we understood is number of element in A cross B is equal to number of element in B cross A equal to number of element in set A into number of element in set B. Third property which we understood from this concept, that is A cross phi is equal to phi. भाई जीरो को किसी के साथ भी आप इंटू करोगे जीरो ही रिटर्न करेगा. And fourth property is A cross B. इस सेट बिल्डर फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट को किस तरह से लिखा जाता है? A cross B is equal to XY such that जो X एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले सेट, लेफ्ट वाले सेट से बिलोंग करता है. A cross B is equal to XY such that जो X एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करेगा? सेट A को. Y एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा? सेट B को. बट कंडीशन क्या है कि A B is not equal to 5. A B is not equal to 5. ये यहाँ आके आपका कंप्लीट होगा. सेट ए में भी कोई 5 एलिमेंट नहीं हो, सेट ए भी 5 नहीं होना चाहिए, सेट दोनों में नॉन जीरो एलिमेंट्स होने चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए. बिकॉज 5 होगा तो फिर वो 5 रिटर्न करेगा. तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स वाई. तो जो एक्स एलिमेंट है वो लेफ्ट वाला, यानी कि लेफ्ट वाला सेट है जो एक्स ए को बिलोंग करेगा और वाई बी को बिलोंग करेगा. लाइक जी क्रॉस एच इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स जो है आपका वो जी को बिलोंग करेगा और वाई जो है वो एच को बिलोंग करेगा. तो अभी तक जो भी कंसेप्ट हमने सीखा या समझा वो एक बार हमारा रिवीजन हो गया. ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज state whether each of the following statements are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correct. Okay. First statement is set P as element Mn, set Q as element Nn, then P cross Q. First of all देखो set P में कितने एलिमेंट है? 2. सेट Q में भी कितने एलिमेंट है? 2. तो 2 क्रॉस 2 4 एलिमेंट्स होने चाहिए. और यहाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन P क्रॉस Q में 2 एलिमेंट है. मैंने कहा था जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं जो ऑर्डर पेयर होता है वो एलिमेंट होते हैं. देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स हैव बीन गिवन, व्हिच इज रॉन्ग. आइडियली कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए. दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. So how will you represent your answer? P क्रॉस Q जो होगा वो क्या होगा? Mn, mm, Nn, Nn. This is the ideal answer. 4 elements only. 1, 2, 3, 4. That is why this statement is false, and this is the true statement. Okay, true answer. Part 2.
If A and B are non-empty sets, then A cross B is a non-empty set of ordered pair x y such that x belong to A and y belong to B. ये तो अभी हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की है कि अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है, फाई नहीं होना चाहिए, तो जो दो नॉन एम्प्टी सेट का जो ऑर्डर पेयर अगर एक्स वाई बन रहा है, तो जो एक्स लेफ्ट वाले जो एलिमेंट होंगे वो सेट ए को बिलोंग करेंगे और राइट वाले एलिमेंट सेट बी को. यस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. नाउ third statement, if set A has element 1 2, set B has element 3 4, then A cross B intersection phi is equal to phi. चलो चेक करते हैं भाई, किसी भी सेट का फाई के साथ जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, किसी भी सेट का फाई के साथ जो इंटरसेक्शन होगा वो फाई होगा. तो अगर ए और फाई का और किसी भी सेट को अगर मैं फाई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो वो फाई के इक्वल आएगा. तो ये भी आपका क्या है, ये ट्रू है. इट इज ऑल्सो ट्रू. ये चीज को हमने एग्जांपल से समझा. लाइक फॉर एग्जांपल सेट ए हैज एलिमेंट 1 2, सेट बी हैज एलिमेंट 3 4. अब आप देखो बी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई. अब बी और फाई, किसी भी सेट और फाई के बीच में जो इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा फाई होता है. अब किसी सेट को अगर मैं फाई के साथ इंटू करूंगा तो मुझे फाई ही रिटर्न करेगा. दैट इज ट्रू. दैट इज ट्रू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज set A has element 1 2, set B has element 1 2 3 4, set C has element 5 6, and set D has element 5 6 7 8. Okay, then verify that A cross within bracket B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C. This is the first part. Okay, first of all, let me write the value of all these sets. Set A, value of set A is 1 2. Set B, value of set B is 1 2 3 4. 1 2 3 and 4. Set C, value of set C is 5 6. And value of set D is 5 6 7 8. 5 6 7 8. 5 6 7 8. Right. Well, left hand side, A cross within bracket B intersection C. A cross within bracket B intersection C. So first of all we will find the value of B intersection C. आप देखो क्या B और C में कुछ कॉमन है? No. तो B intersection C हमारा 5 हो गया. तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C की वैल्यू क्या है, ये आपकी 5. तो A क्रॉस 5, और किसी भी सेट को जब हम 5 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं इट इज इक्वल टू 5. तो लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी आई है वो आपकी आ गई 5. तो हमारी राइट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड इज A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C. A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C. A cross B, this is set A and this is set B. You can see that set A has element 1 2 and set B has element 1 2 3 4. 1 1 1 2 1 3 and 1 4. Then 2 1 2 2 2 3 and 2. Then A cross C. Set A has element 1 2 and set C has element 5 6. Then 1 5 1 6 2 5 2 6. Now is there any common element between A cross B and A cross C? No. 2 1, there is no 2 1. 2 2, no. 2 3, there is no 2 3 and 2 4. There is no common element. So left hand side is equal to 5. Right hand side is also equal to 5. Hence very. That is left hand side is equal to right hand side. Hence very. Part 2. Part 2 is
A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। सबसेट का मतलब जब आप A क्रॉस C फाइंड करोगे तो जितने भी एलिमेंट A क्रॉस C में होंगे वो सारे के सारे B क्रॉस D में होने चाहिए, ये आपको वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड A क्रॉस C। A क्रॉस C हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। वी ओनली नीड टू फाइंड B क्रॉस D। A क्रॉस C हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 1 5 1 6 2 5 2 6। नाउ वी नीड टू फाइंड B क्रॉस D। Set B as element 1 2 3 4 and set D as element 5 6 7। 1 5 1 6 1 7 1 8 and 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 and 4 8. Now you can see that 1 5, there is 1 5, 1 6 1 6 2 5 2 5 2 6, because all elements of A cross C are in B cross D. Therefore, we can say that yes, A cross C is a subset of B cross D. This is our question number 7. The next question is question number 8. Let set A as element 1 2 and set B as element 3 4. Write A cross B. कल इतना कर लेते हैं हम. Set A as element 1 2. Set B as element 3 4. Write A cross B. That is 1 2 cross 3 4. 1 3 1 4 2 3 and 2 4. The next part is how many subset will A cross B have and list them. A क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे और आपको लिस्ट भी करना। तो जो आपने चैप्टर 1 में कंसेप्ट स्टडी किया था नंबर ऑफ सबसेट वाला, सेम वही कंसेप्ट आपका यहाँ भी होता है। तो पावर सेट आपने स्टडी किया था कि किसी भी A क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे। देखो कितने एलिमेंट है 1 2 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे A क्रॉस बी में वो कितने होंगे 2 रेज टू पावर है एन इज नंबर ऑफ एलिमेंट। और ऑर्डर जब हम दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो जो ऑर्डर पेयर होता है उसी को हम एलिमेंट कहते हैं। उन ऑर्डर पेयर को ही एलिमेंट कहा जाता है। तो 1 2 3 4 दैट इज 2 रेज टू पावर 4। तो 16 सबसेट होंगे। अब वो कौन से सबसेट होंगे उनको लिस्ट भी करना है। तो देखो कौन कौन से होंगे। फर्स्ट वन इज 5, देन इंडिविजुअल 1 3 1 4 2 3 2 4। अब आप दो दो सेट की ग्रुपिंग कर दो, दो दो एलिमेंट्स की ग्रुपिंग कर दो, लाइक 1 3 1 4 1 3 2 3 एंड 1 3 2 4। अब 1 4 के साथ करो 1 4 2 3 1 4 2 4। अब 2 3 की करो 2 3 2 4। दो दो की ग्रुपिंग हो गई। अब 3 3 की करो 1 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 4, देन 1 4 2 3 2 4, देन 2 3 2 4 1 3 एंड देन 3 3 की ग्रुपिंग होगी। लास्ट जो होगा आपका वो सेट इटसेल्फ, दैट इज 1 3 1 4 2 3 2 4। चैप्टर 1 में हम स्टडी कर चुके हैं। जो सेट होता है वो अपना सबसेट होता है। जैसे 1 2 जो है वो सेट ए का सबसेट है। सेट इटसेल्फ इज सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो 1 3 1 4 2 3 2 4 भी आपका वन ऑफ द सबसेट होगा। अब अगर आप इसको काउंट करोगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जहां आपका ये कंसेप्ट मैं खत्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज जब हम नेक्स्ट कंसेप्ट जब हम शुरू करेंगे रिलेशन का वो यहीं से स्टार्ट होगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैं अपने ऑर्डर के हिसाब से आपको करवाऊंगा। जहां ये कंसेप्ट आपका खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 8 में नंबर ऑफ सबसेट पर, जब मैं रिलेशन स्टार्ट करूंगा वो यहीं से स्टार्ट होगा। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आप देख लो आपकी तसल्ली के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया ट्रू फॉल्स वाला, 5 ए क्रॉस ए 6 7 8 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 2.1। अब आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, जैसा आप हर क्लास में करते हो, अच्छे से इस लेक्चर को अटेंड करना है, अपने नोट्स बनाने हैं,
और जो आपका डाउट सेशन होगा उससे पहले आपको अपने जो पीडीएफ है एक्सरसाइज 2.1 के नोट्स की, वो मुझे आपने शेयर करनी है, ठीक है। और उसके बाद 7:30 पर पहले आपका इकोनॉमिक्स का डाउट सेशन होगा, जो आज की लाइव क्लास होगी। उसमें लाइव डाउट सेशन पहले इको का होगा और उसके बाद फिर मैथ्स का लाइव डाउट सेशन होगा। ओके ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।